Good morning, students. Yesterday we discussed about the ellipse, its standard equation, and the equation that can be reduced into the standard form. That is x square upon a square plus y square upon b square equals to 1. X square upon 4 plus y square upon 1 equals to 1, for example. And if I write another one, x plus 1 whole square upon 16 plus y minus 1 whole square upon 9 equals to 1. This can be rewritten as capital Y square upon 9 equals to 1, where capital X is x plus 1 and capital Y is y minus 1. This type of sum we have done in case of parabola, but actually what is the meaning of this capital X and what is the meaning of this capital Y? Today we will discuss this particular part, then we will extend the concept. Okay, so I consider this equation first. X square plus y square equals to 1. This is a second degree equation in x and y both, and everybody knows this is a circle with center 0, 0 and radius of 1 unit. If we draw the diagram of this one, center is at the origin, so the circle is like this. Now the question is, the radius of this circle is 1 unit. If I draw the circle at this place, for example, of the same radius being the same, that means this is the circle of radius 1, this is the circle of radius 1. If I look at this circle with respect to this origin, then center of this circle will be changed. Means if I consider these two lines mutually perpendicular, so this point will be the center of the circle. But remember, the area of this circle and the area of this circle both will be identical, because the area of circle is given by pi r square. R is 1, so 1 square means it is pi, so area of this circle is pi. Area of this circle is also pi, so if I draw infinite number of circles of the same radius, then their area will be identical, but the center will be changed. So here it is, center is 0, 0, and here center definitely it will be different. So suppose I write it just like this. Here it is the x coordinate, and this side it will be y coordinate. This is 1, 2, roughly, suppose this is 3, this is 1, 2 and 3, because this is of 1 unit, so this point is 3, 3. It is just like this. So equation of this circle will be x minus 3 whole square plus y minus 3 whole square equals to 1, or you can write 1 square. Equation of this circle is x square plus y square equals to 1 square, or I can write x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square equals to 1 square. It will be this. If I write this circle as capital X square plus capital Y square equals to 1 square, where
capital X is x minus 3 and capital Y is y minus 3. Then what does this capital X and Y indicate? This we have to understand. अभी तक मैंने केवल ये कहा था कि ये कैपिटल X है, ये कैपिटल Y है, और फिर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया था पैराबोला के केस में भी, और कल मैंने इलिप्स के केस में भी इसको कंपेयर किया था. एक्चुअली इस ऑरिजिन को यदि मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, इस ऑरिजिन को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, इसका मतलब ये है कि पूरा सिस्टम को मैंने यहाँ शिफ्ट किया, तो एक्सिस को मैंने शिफ्ट कर दिया है. एक्सिस को शिफ्ट करने का मतलब ये मेरी नई एक्सिस बन जाएगी. दिस इज कैपिटल X एंड दिस इज ऑफ कैपिटल Y. इस ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये न्यू एक्सिस है मेरा, ये नया कैपिटल X, ये कैपिटल Y है. तो इन दोनों के केस में ये ऑरिजिन होगा, मीन्स इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट इज कैपिटल X इक्वल्स टू 0 एंड कैपिटल Y इक्वल्स टू 0. इट विल बी दिस विद रेस्पेक्ट टू दिस वन. अब इसको यहां से ध्यान से देखो, x इक्वल्स टू x माइनस 3, इसको यदि मैं 0 लिखता हूं बाय द वे तो x की वैल्यू जो आएगी 3 आएगी. इसको यदि मैं 0 लिखता हूं तो y की वैल्यू जो आएगी 3 आएगी. मींस जो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है वो 3,3 है, पॉइंट्स वही लिखा हुआ है, लेकिन कैपिटल X और कैपिटल Y को मैंने 0 लिखा है. इसका मतलब ये सेंटर जो है वो यहां शिफ्ट हो गया है. दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन. शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन. अब शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन का क्या यूटिलिटी है उसको देखते हैं. इस इक्वेशन को मैं रीराइट करता हूं ओपन करके. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 9 प्लस 9 18, so it is plus 17 equals to 0. Suppose it is this. इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है. स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब ये हुआ कि ऑरिजिन को इसके सेंटर पर मुझे शिफ्ट करना है. अभी मुझे मालूम है कि इसका जो सेंटर है वो 3,3 है, लेकिन ये इक्वेशन जो है वो अपनी पूरी ताकत के साथ में इसको मुझे इस फॉर्म में, पर्टिकुलर फॉर्म में रिड्यूस करना है. पहला मेथड है कि मैं इसको रीटाइप करूं परफेक्ट स्क्वायर बना के, उसके बाद में मैं इस फॉर्म में लाऊं, इसको कैपिटल X और कैपिटल Y सपोज करूं. दूसरा जो मेथड है कि आपको सेंटर मालूम होना चाहिए. हियर सेंटर इज 3,3. रिप्लेसिंग X by कैपिटल X plus 3 and Y by कैपिटल Y plus 3. इस वाले जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसमें कैपिटल X किससे रिप्लेस किया मैंने, x प्लस 3 से, और कैपिटल Y किससे रिप्लेस किया मैंने, y प्लस 3 से. तो क्या बन जाएगा ये x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स x प्लस 3 माइनस 6 टाइम्स y प्लस 3 प्लस 17 इक्वल्स टू 0. Let us simplify this. This is capital X square plus capital Y square plus 6 capital X plus 6 capital Y plus 9 plus 9 is 18. Then it is minus 6x. Then it is minus 6y minus 18. Here it is, then again minus 18, then this is plus 17, that is equal to 0. This part and this part is cancelled out. This part is also cancelled out, and we find it is x square plus y square equals to 1 square. अभी तक क्या किया कि इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके मैंने ऐसे लिखा, फिर मैंने इसको कैपिटल X सपोज किया, कैपिटल Y सपोज करके मैंने कैलकुलेट कर लिया. लेकिन वहाँ ये नहीं था कि कैपिटल X और कैपिटल Y एक्चुअल है क्या.
सेंटर को, तो इसका सेंटर क्या 3,3, जो ऑरिजिन को मैंने सेंटर पे रिप्लेस कर दिया, तो ऐसा दिख रहा है कि जो नई एक्सिस बनी है वो ऑरिजिन जो है वो इस पॉइंट पे हो गया, तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चली जाएगी। इसका ऑरिजिन जो है वो 0,0 होगा। जब कई बार आप लोग नोटबुक में एक्सिस बताते हो, अगर एक ही स्टूडेंट, बाय द वे ब्लैक बोर्ड है, किसी स्टूडेंट ने आके यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया, किसी ने आके यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया, किसी ने सर्कल यहाँ बना दिया, किसी ने सर्कल यहाँ बना दिया। लेकिन यदि मैं साइमल्टेनियस दोनों की स्टडी करता हूँ, तो ये सपोज स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई है, ये कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई है, इसके सिस्टम में इसका ऑरिजिन ये है, इसके सिस्टम में इसका ऑरिजिन ये है। लेकिन यदि मैं दोनों की स्टडी करता हूँ एक साथ साइमल्टेनियसली, तो इसको यदि मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ, एक्सिस को बिना रोटेट के, ध्यान रखना एक्सिस को रोटेट नहीं करना है, एक्सिस पैरेलल ही होनी चाहिए, केवल ऑरिजिन की शिफ्टिंग हो रही है। तो जो इक्वेशन मेरी स्मॉल एक्स वाई में थी वो मेरी किस में टर्न हो जाएगी, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में। जब ये इक्वेशन मेरी इस फॉर्मेट में टर्न हो गई, कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, अब मुझे मालूम है कि ये सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब ये सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो उसका सेंटर क्या होगा, 0,0। तो सेंटर यदि मैं लिखता हूँ तो सेंटर जो है वो 0,0, लेकिन ये कैपिटल एक्स 0 है और ये कैपिटल वाई 0 है। अब कैपिटल एक्स क्या सपोज किया था आपने, कैपिटल एक्स किससे रिप्लेस किया था, या स्मॉल एक्स को किससे रिप्लेस किया, x + 3, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, x - 3, तो ये बन जाएगा x - 3 = 0 एंड y - 3 = 0, सो x = 3 एंड y = 3, मींस उसका सेंटर 3,3 है। एक्चुअल जो सेंटर है वो 3,3 है। मॉडिफाई क्यों किया है, क्योंकि मुझे केवल इसके बारे में सब कुछ आता है, मुझे इस इक्वेशन के बारे में नहीं आता है। जब आप कोई लैंग्वेज सीखते हो, आजकल तो स्मार्टफोन मोबाइल आपके पास में होते हैं, उसमें ऐप होता है जिसमें किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो जब बाहर की कंट्री में जाते हैं तो उनके पास में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कई तरह की लैंग्वेज आती है, उसको कन्वर्ट करना आता है। आजकल ऐप पे कैसे है, यदि किसी को रशियन लैंग्वेज नहीं आती है, वो केवल हिंदी बोलता है, तो हिंदी को रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसी तरह से मुझे किसी इक्वेशन के बारे में नहीं मालूम कि इक्वेशन कौन सी है, मुझे स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में मालूम है। इस इक्वेशन का मुझे सेंटर मालूम हो गया 3,3, तो ऑरिजिन को मैंने जब यहाँ पर शिफ्ट किया तो ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गई। अब इसमें कन्वर्ट होते मुझे ये मालूम हो गया कि ये इक्वेशन सर्कल की है और उसका सेंटर 0,0, कंपेयर करके मैंने इसका ओरिजिनल जो पार्ट था वो मैंने कैलकुलेट कर लिया है। सो दिस पार्ट इज नोन एज शिफ्टिंग ऑफ द ऑरिजिन। अब ये जो है वो हम इलिप्स के केस में किस तरह से यूज करते हैं उसको देखते हैं। पैराबोला के केस में हम वर्टेक्स को शिफ्ट करते हैं। पहले एग्जांपल पैराबोला, लेट अस कंसीडर द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। वी बिगिन विद दिस y square minus 2x minus 4y plus 7 equals to 0. This implies y square minus 4y equals to 2x minus 7 equals to 0. Y square minus 4y plus 4 2x minus 7 plus 4, that says y minus 2 whole square equals to 2x minus 3. Then is y minus 2 whole square equals to 2 times x minus 3 by 2. And this is capital Y square equals to 2 times of capital X, where capital X is x minus 3 by 2 and capital Y is y minus 2. See, ये कैपिटल X और कैपिटल Y मीन्स इसके रेस्पेक्ट में जो ओरिजिन है वो 0,0 है,
जब आप वर्टेक्स कैलकुलेट करते हो तो इस इक्वेशन, मुझे ये इक्वेशन मालूम है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसका वर्टेक्स जो है वो 0,0 आएगा। मीन्स कैपिटल X इज 0 एंड कैपिटल Y इज 0, देयरफॉर x minus 3/2 equals to 0, y minus 2 equals to 0, implies x is 3/2, y equals to 2, so vertex is 3/2, comma। अब इस इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में रिड्यूस किया है, इस वाले फॉर्म में। अब ये पूरा आर्टिकल मुझे नहीं करना है, तो इस इक्वेशन को स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें कैसे कन्वर्ट करें, तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि उसका वर्टेक्स क्या है, क्योंकि इसका वर्टेक्स ऑरिजिन पे है, तो मुझे ऑरिजिन पे उस वर्टेक्स को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मुझे उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम होना चाहिए। अब मैंने इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लिए, तो इसके हेल्प से मैं इस इक्वेशन को डायरेक्ट इसमें कैसे रिजोल्व करता हूँ, उसको वेरीफाई करता हूँ, उसको चेक करता हूँ। रिजॉल्व y² minus 2x minus 4y plus 7 equals to 0 by shifting the origin at the vertex whose coordinates are given by 3/2, 2. This is the question. Resolve this equation by shifting the origin at the vertex whose coordinates are given by this one. Replacing small x by capital X plus 3/2 and small y by capital X capital Y plus 2. We get y square means capital Y plus 2 whole square minus 2 times x plus 3/2 minus 4 times y plus 2 plus 7 equals to 0. This is capital Y square plus 4 capital Y plus 4 minus 2x minus 6 minus 4y minus 8 and plus 7. This is equal to 0, and this implies this part is cancelled out. So it is y square 8 and 6 minus 3 minus 6. Here, yes, minus 3. So 7 plus 4 11 and minus 8 minus 3 11 and 11 cancelled out. So this constant cancelled out. So we are getting y square equals to 2x. Yes. ये वो इक्वेशन है जो हमने यहाँ पर रिड्यूस किया था। इसलिए जब ऑरिजिन को शिफ्ट करना हो बिना एक्सिस को रोटेट किए, तो किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाता है वो आपको सीखना है। यदि ट्रांसफॉर्म करने पर स्टैंडर्ड इक्वेशन बनती है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के जितने भी पैरामीटर्स है वो हम कैलकुलेट करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इससे पहले मैंने सर्कल का एग्जांपल बताया था, ये पैराबोला का एग्जांपल है। पैराबोला के इक्वेशन को, ऑरिजिन को मैंने वर्टेक्स पे शिफ्ट किया, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन आने के बाद में जितने भी रिमेनिंग पैरामीटर्स है आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसी तरह से एक एग्जांपल इलिप्स का लेते हैं, फिर इसको छोड़ देते हैं। पैराबोला और सर्कल में इसकी ज्यादा जरूरत नहीं रहती है, लेकिन इलिप्स के केस में क्या बनता है उसको ध्यान से देखिए। Find the center of the conic x square plus xy plus y square minus 2x
plus y minus 4 equals to 0. Also reduce the equation by shifting the origin x is center. क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा है इसको, देखते हैं इसको. Let's f of xy is x square plus xy plus y square minus 2x plus y minus 4. Remember, this you have to calculate the value of delta not equals to 0. You just verify this. Then a is 1, b is also 1, x is 1 by 2. Therefore, x square is 1 by 4 and AB is 1. Therefore, x square is less than AB. So this is ellipse. The name of the conic is ellipse here. So, how to find the center of this? Yesterday I already explained. You just differentiate it partially. This is a 2x plus y minus 2. Remember, differentiation with respect to x partially, so y will be constant. So here it is y is constant. So it is 2x plus y, this is 0, this is minus 2 and now being 0. And this is 0, then here it is x plus 2y and this is plus 1. Solving 2x plus y minus 2 equals to 0 and x plus 2y plus 1 equals to 0. Multiplied by 2 into 1, so it is 2x plus y. This is time consuming, but we have to simplify. No alternative here. This is minus, minus and minus. Cancel out, so this is minus 3y is minus 4 equals to 0. So y equals to 4 by 3 with negative sign. Now we calculate the value of x. So x is also x equals to minus 2y minus 1, so it is minus 2 times minus 4 by 3 minus 1. So it is plus 8 by 3 minus 1, so it is 5 by 3. I hope so. Therefore, center is x coordinate 5 by 3. Yes, 5 by 3 comma minus 4 by 3. कैलकुलेशन सही होना चाहिए. x is 5 by 3, then it is minus 8 by 3. 5 by 3 minus 3 upon 3 minus 1 plus 1 0. Yes, सही है. So center of this ellipse is 5 by 3 minus 4 by 3. जरूरी है कि सेंटर आपको पसंद का हो हमेशा 1, 1, 1, minus 2. इसका ठेका नहीं ले रखा है. ऐसा भी हो सकता है. Now, shifting the origin at the center of the ellipse. That means on replacing small x by capital Y plus 5 by 3 add करना है and y by capital Y minus 4 by 3 we get. कई राइटर्स यहाँ पर ये इसको कैपिटल एक्स जो स्मॉल एक्स भी लिखते हैं और कैपिटल वाई की जगह स्मॉल वाई भी लिखते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वो उसका ट्रांसफॉर्म हुआ है.
कई बार यहाँ कैपिटल एक्स की जगह एक्स डैश और कैपिटल वाई की जगह वाई डैश भी लिखते हैं. So x square means capital X plus 5 by 3 whole square plus capital X plus 5 by 3 capital Y minus 4 by 3 plus capital Y minus 4 by 3 whole square minus 2 times capital X plus 5 by 3 plus capital Y minus 4 by 3 minus 4 equals to 0. टाइम कंज्यूमिंग है, सोना नहीं है, देखते रहना कैलकुलेशन. कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस 10 by 3x plus 25 by 9 plus x into y xy minus 4x by 3 plus माइनस 4x by 3 मैं यहाँ लिख देता हूँ. टर्म्स को अरेंज करते हो चलो. प्लस 5y by 3 माइनस 20 by 9 कांस्टेंट टर्म. एक बार चेक कर लेते. xy प्लस माइनस 4x by 3 yes, then प्लस 5y upon 3 this side and minus 20 upon 9 plus y square minus 8y upon 3 plus 16 upon 9 यहाँ लिख देता हूँ plus 16 upon 9 minus 2x यहाँ से then minus 10 by 3 constant यहाँ लगा देता हूँ minus 10 by 3 plus y minus 4 by 3 and minus 4 equals to 0. It will be this. Let us arrange the term. Capital X square. यहाँ से x y की टर्म पहले इसको लिख देता हूँ प्लस कैपिटल एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. Yes, plus y square then plus 10 by 3 minus 4 by 3 minus 2 multiplied by x then plus 5 by 3 minus 8 by 3 plus 1 into capital Y then constant term ये plus 25 minus 20 प्लस 16 अपॉन 9 और यहाँ कांस्टेंट और है मेरे पास में माइनस 10 by 3 प्लस 4 by 3 एंड प्लस 4 इक्वल टू 0. यस, सारे नेगेटिव टर्म्स हैं, बिल्कुल ठीक है. इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये. कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 3 एलसीएम आएगा. यह बनेगा 6 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 और प्लस 10 हो गया 0 बन खत्म हो गया. दिस इज आउट फिनिश्ड. ये 3 इधर आएगा 5 प्लस 3 8 माइनस 8 खत्म. मीन्स एक्स की टर्म खत्म होगी वाई की टर्म भी खत्म होगी. ये कांस्टेंट टर्म है 25 minus 20 5 plus 16 that is 21 upon 9 लिख देता हूँ मैं इसको. then minus यहाँ से 4 3 12 plus 4 16 और 10 26 upon 3 equals to 0.
उम्मीद करता हूं कि कैलकुलेशन सारी सही है। अब जो बात नोट करनी है, ओरिजिनल इक्वेशन ये ओरिजिनल, इस ओरिजिनल इक्वेशन का जो वर्टेक्स हमने कैलकुलेट किया था, सॉरी सेंटर जो कैलकुलेट किया था, उस सेंटर पे ओरिजिन को शिफ्ट किया और ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट कर दी है। लंबा प्रोसेस है और उसको यदि आप ध्यान से देखते हो तो ये जो तीनों टर्म हैं वो बिल्कुल ऐसी कैसी है, बस फर्क ये है कि वहां स्मॉल एक्स चल रहा है और यहाँ पर स्मॉल वाई चल रहा है। ये टर्म नहीं आ रही, ये टर्म नहीं आ रही, क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट बदल गया है। तो इस पूरे को मैं केवल लैंग्वेज में लिखता हूं, शिफ्टिंग द ओरिजिन एट द सेंटर, then the equation is reduced as capital X square plus capital XY plus capital Y square plus constant C1 equals to 0 by 0। क्योंकि मुझे ये मालूम है कि ये तो ऐसा आएगा, ये आपके पास में वेरिफिकेशन है। अब कांस्टेंट क्या कैलकुलेट करना मुझे? C1 कैसे कैलकुलेट होगा? C1 यहाँ पर मेरे पास में ये है -57/9। अब जब उसको जनरलाइज्ड वे से करते हैं तो जो C1 आता है, दैट द C1 इज इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन AB माइनस H स्क्वायर। इसकी वैल्यू डेल्टा आप पहले कैलकुलेट करोगे, क्यों बिना डेल्टा कैलकुलेट किए आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि वो पेयर ऑफ लाइन से कर रहे हैं, इसको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। A, B और H आपको मालूम है, इसका मतलब ये पूरे रामायण न करके केवल आपको सेंटर कैलकुलेट करना है। सेंटर कैलकुलेट करने के बाद में ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में रिड्यूस होगी और जो C1 कैलकुलेट करना है वो मैंने आपको बता दिया कि ये डेल्टा अपॉन AB माइनस H स्क्वायर के इक्वल है। लेकिन ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हुई है जो आपने लोअर क्लास में इलिप्स का इक्वेशन पढ़ा है, स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये इसमें कन्वर्ट नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना। इसमें ये टर्म है मिडिल टर्म, इसलिए हमें इस तरह के इलिप्स को पहले पढ़ना होगा जिसके स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 1। जब मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा तो आप देख सकते हो कि कांस्टेंट की वैल्यू इस पूरे पेज में डिवाइड करता हूं तो 1 आ सकता है। इसलिए ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन के किसमें xy की टर्म है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो ये या तो हाइपरबोला देगा या फिर इलिप्स देगा। तो मुझे इस इक्वेशन का ट्रेसिंग आना चाहिए। यदि इस इक्वेशन का ट्रेसिंग आएगा तो मैं इस इक्वेशन का ट्रेसिंग अपने आप सीखूंगा, कारण कि मैं इस इक्वेशन को इसमें बदल दूंगा और इसके बारे में मुझे सब कुछ याद है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि पैराबोला को बड़ी इक्वेशन दे रखी है और उस बड़ी इक्वेशन को यदि मैं y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x में कन्वर्ट कर लेता हूं, क्योंकि मैं इसको जानता हूं, इसके हेल्प से मैं सारा कैलकुलेट कर लूंगा। इसी तरह से इलिप्स को मैं इस फॉर्म में बदल दूंगा और उसके बाद में इसकी हेल्प से मैं पूरे इलिप्स को ट्रेस कर लूंगा। इसलिए कल या जब भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसको सीखेंगे कि ये इलिप्स और ये हाइपरबोला है जो कि सेंट्रल फॉर्म कहलाती है, उसका हम किस तरह से ट्रेस करते हैं, उसके बाद हम जनरलाइज्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।